Helping verbs. What do we mean by helping verbs? As is evident and as is suggested by the name, helping verbs are related to verb. और सेंटेंस के उस सेगमेंट में वो नॉर्मली यूज होते हैं जहाँ के वर्ब होता है. हेल्पिंग वर्ब इज टू हेल्प द वर्ब और हेल्पिंग वर्ब इज टू मॉडिफाई एंड इज टू ऐड सम मीनिंग टू वर्ब. किस तरह से? वो इस तरह से कि जब हम कहते हैं ना कि आई एम प्लेइंग and I was playing. So automatically your mind and your knowledge is telling you, वो जो schemata में और background knowledge में जो चीज़ है, आपका mind जो उसको decoding कर रहा है मैसेज की. ये सारी terms मैं इसलिए अभी fluently और frequently बोल लेती हूँ because you are familiar with these terms now. तो आपका mind जो उसकी decoding कर रहा है ना, तो automatically am के लिए वो present में जाएगा और was के लिए वो past में जाएगा. So helping verb, they not only give some meaning to the verb, but they create a sense of the time also. They create a sense of timeline also. So आपके ये जो helping verb हैं, आप किस वक्त पढ़ाते हैं? My suggestion is that you should teach them when you are dealing with the topic of the verb. वर्ब और हेल्पिंग वर्ब को इकट्ठा पढ़ाइए. और अगर आप कहीं इनको ग्रामर के उसमें यूज़ कर रहे हैं सीक्वेंस में, तो फिर ओके, इट्स फाइन, बिकॉज एज ए टीचर दैट इज़ योर डिसीजन कि कौन सा टॉपिक मैंने किस वक्त करवाना है और कैसे करवाना है. लेकिन टेंसेस जब आप करवाते हैं तो उससे पहले उनको हेल्पिंग वर्ब का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि क्या होते हैं. बिकॉज इन टेंसेस यू हैव टू डील विद द वर्ब and with the helping verb. उसके helping verb के बगैर अगर उनको पता ही नहीं है कि helping verb क्या होता है, they won't be able to get the concept related to some tense, some type of the tense. So look at this table. हमने ये देखा हुआ है पहले भी, but just for your revision, ये हैं जी आपके 12 helping verbs और this is 1, 2 and so on. और आप ये देखें कि किसी में भी आपका helping verb repeat नहीं हो रहा. These are 12 different helping verbs और 12 different tenses हैं. और ये obviously when you look at there's a position in the sentence, ये आम तौर पे किससे पहले होते हैं? ये verb से पहले होंगे. और sometimes you can find them in the beginning of the sentence जबकि आप कोई question बना रहे हैं. But these are related to the verb section and these are related to the segment in the sentence where verb is located. ये चीज़ आपको माइंड में रखनी है, ठीक है. और जब आपने अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाना है तो वो भी आपने इसी तरह से पढ़ाना है. ये टेबल आपने उनको अलग-अलग से मत प्लीज़ बताइए. वो तो आप बताएंगे ना कि जब आप टेंस पे बता रहे हैं, लेकिन जब आप हेल्पिंग वर्ब्स सिखाते हैं तो ये सारा का सारा टेबल उनको इकट्ठा दिखाइए. क्योंकि देखिए ये सारी पिक्चर आपके सामने है. Instead of teaching them and telling them separately कि वहाँ हमने do does किया था, now it is did here, we were talking about am and is and are, और अभी हम उसके बाद was were में, not like this. Keep this picture in front of them so that they should be having a complete view of the picture. So आपके जो helping verbs हैं फिर वो क्या वो और भी करते हैं कि these are used to create the most complicated verbs also. Most complicated कौन से होते हैं? Perfect and perfect continuous. Perfect continuous जो है ना, that is considered to be a difficult tense और इसको पढ़ाना भी जो है ना थोड़ा सा मुश्किल होता है because you are connecting 2 points at timeline. We have talked about timeline and you must be familiar with this concept. तो वो जो है ना, वो जो 2 points को हम connect कर रहे होते हैं ना, I have been playing since morning. I had been doing this like this and we are connecting 2 points on the timeline. So इसलिए इसको हम समझते हैं कि difficult है. उसकी reason भी मैं आपको बता रही हूँ कि क्यों ये difficult होता है. और इसको हम normally, if you remember the block of the tenses, we always keep it at the end. जबकि हम present भी कर चुके हैं और हम जबकि perfect भी कर चुके हैं, तो then we will be coming to
present perfect continuous and so on. So this is the helping verbs help us to create these tenses also. There's another point related to this कि इसको हम auxiliary भी बोलते हैं. Helping verb को we sometimes call auxiliaries also auxiliary verb. So if you come in contact with this term somewhere, तो उसमें आपने confused नहीं होना. And when you are teaching your students, तो उनको दोनों terms बताएं कि they can call auxiliary and they can call helping verb also. And then we know that by changing the helping verbs, and we can change the tenses also. And we have talked about different formula, and we know that there are 5 different जो है 5 किस्म के फॉर्मूला हैं जिनसे कि वी क्रिएट 12 टेंसेस. और फिर 12 टेंसेस किस तरह फिर इनफैक्ट क्रिएट होते हैं बाय चेंजिंग डिफरेंट हेल्पिंग वर्ब्स. और हेल्पिंग वर्ब 12 जगह पे डिफरेंट 12 होंगे, वो कहीं सिमिलर नहीं होगा. सो इसको हम चेंज करते हुए वी मूव फ्रॉम वन टेंस टू अनदर. जैसे आई एम प्लेइंग, दिस इज प्रेजेंट, एंड आई वाज प्लेइंग, दैट इज पास्ट. कहाँ सिर्फ चेंज आई है? हेल्पिंग वर्ब के सेक्शन में चेंज आई है. एम से आप वॉज में गए हैं और टेंस आपका चेंज हो गया है. सिमिलरली आई हैव प्लेड एंड आई हैड प्लेड, 2 डिफरेंट टेंसेस हैं. फॉर्मूला इज द सेम. चेंज कहाँ आई है? हेल्पिंग वर्ब के सेक्शन में आई है. हैव की जब आपने कहा आई हैव प्लेड, यू आर टॉकिंग अबाउट प्रेजेंट परफेक्ट. एंड व्हेन यू से दैट आई हैड प्लेड, दैट यू आर टॉकिंग अबाउट पास्ट परफेक्ट. और आपने सिर्फ हेल्पिंग वर्ब को चेंज किया और आपने टेंस चेंज कर लिया. सो आपका जो माइंड है जब उसको डीकोड कर रहा है, दिस अनदर पॉइंट कि आप इसको क्यों कह रहे हैं कि ये पास्ट है और उसको क्यों कह रहे हैं प्रेजेंट है. सेंटेंस तो आपको नहीं कह रहा कि मैं पास्ट हूँ या मैं प्रेजेंट हूँ. आपका माइंड उसको डीकोड कर रहा है. उस मैसेज को जो डीकोडिंग है आपका माइंड उसको कर रहा है. आप सुनते ही आपका माइंड जो है ना, that has start working on that, and that has started the process of decoding. और decoding के process में आपका जो knowledge है ना, वो background knowledge, schemata का word भी हमने use किया हुआ है, वो आपको बता रहा है कि I have is related to present and I had is related to past. So this is the concept of helping verbs, or this is how helping verbs जो हैं वो verb को help करते हैं.